Good morning, this is Mamta Verma and we were doing the series of literary theory in which we have completed 6 classes and in last class we did for 2 classes of formalisms and next this is the last class of formalism. So let's get start. So okay, in which we have done the 3 formalist critics. फर्स्ट हमने किया था विक्टर स्क्लोवस्की, सेकंड था बोरिस एकिनबॉम एंड थर्ड किया था यूरी टेनिनोव एंड नेक्स्ट है रोमन जैकब्सन्स रोमन जैकब्सन Okay, Roman Jacobson is a Russian literary critic and linguistic. Okay, linguistic. So ये literary critic भी थे और linguistic भी थे. Linguistic is any persons or who talks about the language, the origin of the words, the structure of the sentence. Okay, and morphology, phonology, the pronunciation of the words. Okay, like the syntax, how the word is placed in the sentence into the proper order. So when all of these things is related to the linguistic, means any person who studies all of these things is called linguistic. Okay, so first हम देखते हैं रोमन जैकब्सन के वर्क, जिसमें आता है फर्स्ट वर्क है इसका वर्ड एंड लैंग्वेज, सेकंड है लिंग्विस्टिक्स एंड पोएटिक्स एंड थर्ड वर्क है 6 एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज, 6 एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज. तो ये 3 वर्क हैं जो रोमन जैकब्सन के इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जिसमें ये वर्ड एंड लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक एंड पोएटिक्स, इसमें इन्होंने कोई थियोरी नहीं दी है, इनके सिर्फ टाइटल याद रखनी है. बाकी जो 6 एलिमेंट ऑफ लैंग्वेज है इसमें इसने बात की है लैंग्वेज की, कैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, क्या इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, सेंटेंस और लैंग्वेज के लिए. सो सबसे पहले 6 एलिमेंट्स की बात करते हैं कि कौन से वो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं. सो इसने जो 6 एलिमेंट दिए हैं वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, ठीक है. कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो 6 एलिमेंट की हमें जरूरत होती है वो एलिमेंट इसने दिए हैं. यहाँ मैं 1 बाय 1 करके लिखती हूँ. फर्स्ट है एड्रेसर, फर्स्ट एलिमेंट है एड्रेसर मीन्स सेंडर. इसको रोमन जैकब्सन ने, ठीक है, इमोटिव बोला है, इमोटिव. सेकंड है एड्रेसी रिसीवर, और इसको इसने बोला है कोनेटिव, ठीक है. थर्ड है कंटेक्स्ट, इसको बोला है रिफरेंशियल एंड फोर्थ एलिमेंट है मैसेज, जिसको इसने बोला है पोएटिक. फिफ्थ एलिमेंट है कॉन्टैक्ट, जिसको चैनल भी बोल सकते हो आप, चैनल. इसको इसने बोला है, चैनल को बोला है फैटिक, ठीक है. एंड लास्ट वन इज what remain, yes, code, that is called metalingual, ठीक है.
So what Raman Jacobson says that we we should focus on these 6 elements to make our communications successful. Okay, whenever we communicate to one person to another, okay, through the channel, through any literary devices, then this 6 element is important to make the communication successful. Okay, then first है addresser. Addresser here is the sender who send the message. Okay, so उसको इसने emotive बोला है, ठीक है. सेकंड है एड्रेसी मीन्स रिसीवर ऑफ द मैसेज, उसको उनसे कॉनेटिव बोला है. एंड थर्ड है कंटेक्स्ट. कंटेक्स्ट एंड इसको इसने रेफरेंशियल बोला है. कंटेक्स्ट मीन्स इन विच सिचुएशन द सेंडर सेंड द मैसेज. इट शोज द मूड ऑफ द सेंडर, ठीक है, इन विच मूड ही सेंड द मैसेज, he try to write down the message. Okay, it shows the environment of the senders. Okay, and all of these things is related to context. Okay, and it also shows the reason why he is sending the message to the sender, okay, to the receiver, sorry. And this message shows any information or the ideas which the sender want to send to the receiver. Okay, so it shows what type of language he choose to send the message, what type of word collection he choose for his message, whether he is using any literary devices or which kind of form of language he is using in his message. So all of these things is shows in his message. Okay, related to message. And next है contact channel, जिसके through it is a physical path through which the message is sent to the receiver. And second is and last one is code. Code shows the common code, means it should be how to the sender, and same should be how to the receiver. Same means they both have the same code to receive the message. Like अगर सेंडर को, जैसे कि सेंडर हिंदी लैंग्वेज में या इंग्लिश लैंग्वेज में मैसेज को सेंड कर रहा है, ठीक है, तो जस्ट सेम लैंग्वेज की नॉलेज है वो रिसीवर को भी होनी चाहिए, तभी तो मैसेज की इंफॉर्मेशन या आइडिया उसके पीछे क्या है उसको वो अच्छे से समझ सकते हैं. ठीक है, तो ये है सेम कोड, दोनों के पास सेम होना चाहिए, कॉमन कोड होना चाहिए. ठीक है, तो ये 6 एलिमेंट है जो एक कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल बनाते हैं. सो रोमन जैकसन है, इसमें इस 6 एलिमेंट है, वो इस 6 एलिमेंट ऑफ लैंग्वेज इस बुक में दिए थे, और ये 6 एलिमेंट एक बार एग्जाम में पूछे भी जा सके हैं. इसके बाद उसने 2 एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज एक कॉन्सेप्ट और दिया है, इसी बुक्स में दिया है 2 एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज. ओके, सो 2 एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज में इसने मेटाफोर और मेटोनमी की बात की है. मेटाफोर, ओके, फर्स्ट एस्पेक्ट, सेकंड इज मेटोनमी. ओके, so he says that these both elements are the bipolar structure of language. ठीक है, they both are important to structure any language, for the structurement of any language. So इसलिए मेटाफोर होता है, मेटाफोर is a literary device, so you know very well, two different things that is brought together or compared to each other, that is metaphor. And metonymy is also when we substitute one things for the whole and which is related to each other, which is related to it. जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दूं मेटाफोर का, ओके, सो पेन इज माइटर, pen is mightier than sword. Okay, it is the example of metonymy. Metonymy means pen here is a substitute. pen यूज किसके लिए हुआ है? राइटर के लिए. ठीक है, और sword तलवार का यूज किसके लिए होता है? वॉरियर के लिए. सो ये इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ना. Pen is used for the substitution for the writer, and sword is used for the substitution of warrior. So Roman Jacobson says that they both are important for the structure of the language, metaphor and metonymy. Okay, इसी बुक्स में इसने 2 aphasia disturbance और बताई है, वो और पढ़ लेते हैं हम. ठीक है,
types of aphasia. Aphasia disturbance. So इसमें फर्स्ट आता है कॉम्बिनेशन. सिंटैगमेटिक. ठीक है. सेकंड है सिलेक्शन. पैराडिग्मेटिक. ठीक है. सो इसलिए टू टाइप के ऑफ अफेशिया. अफेशिया इज ए काइंड ऑफ मीन्स डिस्टर्बेंस. इट इज रिलेटेड टू द लैंग्वेज. ठीक है. सो कॉम्बिनेशन को इसने सिंटैगमेटिक नाम दिया है. ठीक है. और सिलेक्शन को इसने पैराडिग्मेटिक बोला है. सो ये कहता है कि कॉम्बिनेशन और सिंटैगमेटिक और ये सिलेक्शन दे आर ऑल्सो प्ले इम्पोर्टेंट रोल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज. ठीक है. सो फर्स्ट इसने बोला है कि कॉम्बिनेशन और सिंटैगमेटिक होता क्या है एक्चुअली. सिंटैगमेटिक इज रिलेटेड टू द सिंटैक्स. It shows the proper order of the word in the sentence, that how we put the proper order in to make a appropriate sentence. जैसे प्रॉपर ऑर्डर कैसे, जैसे कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस हम जब कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें फर्स्ट आता है सब्जेक्ट, उसके बाद उसकी वर्ब आती है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है. ठीक है. अगर ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन है तो वो आएगी. ठीक है. तो ये प्रॉपर ऑर्डर दिखाता है कि how this all combination of the words may create a appropriate meaning. So इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. जैसे अगर मैं सिंटैगमेटिक का एग्जांपल दूँ तो जैसे कि a cat jumped over the table. ठीक है. सो इसमें हम वर्डिंग की प्रॉपर वर्डिंग दे सकते हैं. जैसे कि फर्स्ट सबसे पहले है कैट. ये कैट इज सब्जेक्ट, जंप इज वर्ब, उसके बाद ये प्रीपोजिशन है ओवर. ओके. और ये ऑब्जेक्ट है जिसका टेबल. तो कैसे ये जो वर्डिंग की प्रॉपर ऑर्डर है वो कैसे इस सेंटेंस का मीनिंग एक एप्रोप्रिएट मीनिंग क्रिएट कर रहा है. ठीक है. सेकंड होता है कि सिलेक्शन. इसको इसने पैराडिग्मेटिक बोला है. सो व्हाट इज सिलेक्शन? सो रोमन जिकेंसन सेज दैट व्हेन ए राइटर और ए पोएट कंपोज एनी लिटरेरी वर्क then he has lot of words. He has combination of words from which he have to choose a appropriate word that is appropriate for his sentence. Okay. And that is fit for his sentence. He can't use each and every word for his sentence. So how proper selection of the words make a language different or defamiliarize the language. Okay. So यहाँ defamiliarize का मतलब वही है जो literary devices से है. अगर हम simple wording यूज करेंगे तो वो लैंग्वेज को डिफेमलाइज कैसे कर सकती है. वो तो ऑर्डरली लैंग्वेज होगी जो हम डेली कम्युनिकेशन में यूज करते हैं. सो अगर हमें कुछ स्टेज लैंग्वेज को कुछ डिफरेंट बनाना है तो उसके लिए हमें इन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज और लिटरेरी डिवाइसेस है उनका यूज करना ही होगा. सो इसने बोला है कि कैसे पैराडिग्मेटिक होता है. यहाँ सब्स्टिट्यूट से वर्ड है, मीनिंग है इसका सब्स्टिट्यूट. जब एक वर्ड को दूसरे की जगह हम सब्स्टिट्यूट करते हैं. ठीक है. तो जैसे कि हमारे पास इसी सेंटेंस में हम अगर कैट की जगह किसी और, जैसे यहाँ डॉग यूज कर सकते हैं, मंकी यूज कर सकते हैं. ठीक है. अगर हम इसकी जगह डॉग यूज करें, ए डॉग जंप्ड ओवर द टेबल, तो कैसे इस सेंटेंस का एक वर्ड की वजह से पूरा मीनिंग चेंज हो गया. ठीक है. तो ये होता है सिलेक्शन कि अगर हमारे पास वर्डों का बहुत सारा कॉम्बिनेशन मतलब भंडार है हमारे पास वर्ड, उसमें से अगर हम एक वर्ड को सिलेक्शन करते हैं तो वो पूरे मीनिंग पूरे सेंटेंस का मीनिंग चेंज कर देते हैं. तो दैट इज सिलेक्शन. ओके. सो ये था रोमन जैकब्सन का. इससे ज्यादा रोमन जैकब्सन का कुछ नहीं है. और हम लास्ट हमारा फॉर्मलिस्ट क्रिटिक करते हैं जो है रेने मिलेक.
एंड लास्ट हमारी है रेने मिलेक फॉर्मूलिक क्रिटिक रेने मिलेक। ओके, सो इसके वर्क की बात करते हैं। पहले हैं थ्योरी ऑफ लिटरेचर, 1948 और 9 में भी हो सकता है इसका, ठीक है। उसके बाद है ए हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न क्रिटिसिज्म। इस बुक को भी नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है, दैट वाज पब्लिश्ड इन 1955। तो ये दो वर्क है जो रोमन जैकब्सन के बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और लिटरेरी थ्योरी की बात करें तो ये जो थ्योरी ऑफ लिटरेचर है, ये जो वर्क है इसका इस फॉर्मलिज्म थ्योरी से रिलेटेड है, ठीक है। ये तो हिस्ट्री की बात करता है, मॉडर्न जो राइटर है उनको क्रिटिसिज्म, उनको क्रिटिसाइज किया होगा। ये थ्योरी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इसको नेशनल अवार्ड मिल चुका है, तो ये इसको सिर्फ टाइटल ध्यान में रखना है, क्योंकि वे कभी कभी मैच मेकिंग में पूछ लेते हैं ना, तो दैट्स व्हाई ये इम्पोर्टेंट है। सो रेने मिलेक टॉक अबाउट, अच्छा इस वर्क को इसने कोलैबोरेशन में लिखा था ऑस्टिन वरेन जो लिटरेरी थ्योरिस्ट थे। सो रेने मिलेक, ऑस्टिन वरेन एंड रोमन जैकब्सन थे, वो पराग लिंग्विस्टिक जो ग्रुप था उसी से रिलेटेड है ये सभी जो ऑथर हैं वो सब। तो इसमें थ्योरी ऑफ लिटरेचर में रेने मिलेक और ऑस्टिन वरेन हैं, दोनों ने बोला कि जो लैंग्वेज की लिटरेचर की एनालिसिस होती है वो 2 एस्पेक्ट पे बेस्ड होती है। तो इन्होंने 2 एस्पेक्ट दिए हैं, 2 अप्रोच बोला है इन्होंने, 2 अप्रोच ऑफ एनालिसिस ऑफ लिटरेचर, ठीक है। उसने रेने मिलेक बोलता है कि किसी भी लिटरेचर की एनालिसिस करते हैं वो हमें 2 अप्रोच पे करनी चाहिए, 2 अप्रोच पे वो बेस्ड होती है। तो उन्होंने फर्स्ट अप्रोच को बोला है एक्सट्रिंसिक अप्रोच एंड सेकंड बोला है इंट्रिंसिक अप्रोच, ठीक है। सो व्हाट इज एक्सट्रिंसिक अप्रोच? एक्सट्रिंसिक अप्रोच में आते हैं ऑल द फैक्टर व्हिच इज रिलेटेड टू द आउटर ऑफ द टेक्स्ट। आउटर ऑफ द टेक्स्ट हियर मींस who is the author of the text, okay, what is his historical period or cultural background of the author, and what is the historical period in which the text was written, what is the ideologies in which the author lives, okay. So all of these things which is related to the personal life of the author, okay, इन सभी चीज़ों को जब हम ध्यान में रखते हैं, किसी भी टेक्स्ट का मीनिंग निकालते हैं या उसको इंटरप्रेट करते हैं, दैट इज एक्सट्रिंसिक अप्रोच, ओके, जो आउटर फैक्ट में आते हैं, आउटर फैक्टर होते हैं जितने भी। सेकंड है इंस्ट्रिंसिक अप्रोच। सो इस अप्रोच में इनर फैक्ट आते हैं, इनर फैक्टर, ओके। सो इनर फैक्टर से रिलेटेड है इनर लाइफ ऑफ द टेक्स्ट, हाउ द टेक्स्ट इज कंपोज्ड, ओके, in which structure the text was composed, okay, what kind of language is used by the author and what kind of rhyming is used by the author, what kind of form of language or literary devices is used. So जैसे कि इसमें rhyming, metaphor, simile, okay, images, जब हम टेक्स्ट से रिलेटेड इन सब बातों पे फोकस करते हैं तो दैट इज इंस्ट्रिंसिक अप्रोच ऑफ द टेक्स्ट, ओके। सो रेने मिलेक और ऑस्टिन वरेन दोनों ने फोकस किया है टेक्स्ट के इंट्रिंसिक अप्रोच पे, कि किसी भी टेक्स्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, उसको इंटरप्रेट करने के लिए उसकी इनर लाइफ होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और उसी के थ्रू हम जब मीनिंग निकालते हैं तो वो एप्रोप्रिएट मीनिंग होता है, ठीक है। तो ये था आज रेने मिलेक का, और इसी क्लास के साथ आज फॉर्मलिज्म है, लिटरेरी थ्योरी जो सेकंड है, आज यहीं पर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन करते हैं, ताकि जो डाउट रह गए हैं किसी ने तो वो कंप्लीट हो जाए। तो इसमें हम 20 के नियर बाई क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, जो दोनों थ्योरी, न्यू क्रिटिसिज्म और फॉर्मलिज्म से रिलेटेड है, ओके। उसके बाद हम नेक्स्ट थ्योरी को शुरू करेंगे जो होगी स्ट्रक्चरलिज्म, ओके, दैट्स व्हाई।